ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1979 থেকে কন্টিনিউ। ফিফথ taranga, sloka number 1979 onwards. Yes. Radha Govinda Jugalang, রাধা গোবিন্দ জুলং, Radha Govinda Julang Shakshat, রাধা গোবিন্দ জুলং সাক্ষাৎ Pashyati Chakshusha, পশ্যতি চক্ষুষা। चंपक से होगा चंपक से होगा। Ashoka, Tulasi, চম্পক অশোক তুলসী Kalhairi, Kamaloistuta, কলহরৈ কমলস্তথা। Radha Govinda Jugalang, রাধা গোবিন্দ যুগলং Shakhat Pashyati Chakshusha, সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা। Srimadan Gopalohoi Loho, মন্মদন Srimanmadan Gopaloho, শ্রীমন্মদন গোপাল Patraiva Supratisthita, তত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিত। Oishwara Rupi Gopala, কৈশোর রূপী গোপাল Govinda Praura Vigraha, গোবিন্দ প্রৌর বিগ্রহ। Ubhayastara Tamena, উভয়স্তর তম্মেন Gopinatho Hati Sundar, গোপীনাথ অতি সুন্দর। Dhiradantasta Gopalo, ধীরধস্তস্তু গোপাল Dhiradanta Jokchate, ধীরদত্ত তয়োচ্যতে। Govinda Gopinatho Jo, গোবিন্দ গোপিকা নাথ যো Dhira Lalita Kriti, ধীর ললিতাকৃতি। Singha Madhasta Gopalo, সিংহ মধ্যস্থ গোপাল Vibhanga Lalita Kriti. এটা তো কি সুন্দর। শ্লোক নাম্বার বলুন, শ্লোক নাম্বারটা একটু 1983। 1982। সিংহ মধ্যস্থ গোপাল স্ত্রীভঙ্গ ললিতাকৃতি। ত্রিভঙ্গ শুনেছিলাম, স্ত্রীভঙ্গ এটা আবার কি? ওটা যোগ করা রয়েছে দুটো ওয়ার্ড, ত্রিভঙ্গই হবে এটা। গোপালও আবার কি করে যোগ করা রয়েছে? গোপালও তো গোপালই। গোপাল ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃতি। গোবিন্দ গোপীনাথ গোপিকানাথ, গোবিন্দ গোপিকানাথ পীন বক্ষস্থল বিট, পীন বক্ষস্থল বিট। ত্রিসন্ধ্যামন্ন দনাদ্ধি, ত্রিসন্ধ্যা মন্ন দন্নদ্ধি। মাধুর্যং গোবিন্দাং পতই, মাধুর্যঙ্গ বিদাং কত। গোবর্ধন দরি দণ্ডে, গোবর্ধন দরি দণ্ডে। পল্লবাদি বিচিত্রিতা বিচিত্রিতে, পল্লবাদি বিচিত্রিতে। বাল্য সমতিক্রান্তে, বাল্যত সমতিক্রান্তে। পৌষরাত পরতো গত, কৈশোরাৎ পরতো গত। অগাহমান কন্দর্পং, অগাহমান কন্দর্পং। শ্রী গোবিন্দ বিরাজতে, শ্রী গোবিন্দ বিরাজতে। নানরত্ন মনোহারিণ্যে, নানা রত্ন মনোহারিণ্যে। তস্মিন যোগ পীঠকে, তস্মিন যোগপীঠকে। সহজে হি প্রভারোহং, সহজে হি প্রভাবোহয়ং। নাচিরাত পরিতুষ্যতে, নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি। অন্যেষু সিদ্ধ পীঠেষু, অন্যেষু সিদ্ধ পীঠেষু। যা সিদ্ধি বর্হুহায়নৈ,
যা সিদ্ধির বহু হায়নং বৃন্দাবনে যোগপীঠে বৃন্দাবনে যোগপীঠে সৈকে নানহা প্রয়াজ প্রয়ায়তে শৈকে নানহা প্রজায়তে প্রাতবালাক শঙ্কাংশং প্রাতর্বালার্ক শঙ্কাশং সঙ্গমে মঙ্গলচ্ছবি। সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবি। এরে হ্যাঁ ঠিক আছে মঙ্গলচ্ছবি। মধ্যস্থ তরুণাকার ভাং মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভাং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ শায়দ সিন্দুর পুরাভং সায়ং সিন্দুর পুরাভং রাত্রৈ চ শশী নির্মলম রাত্রৌ চ শশী নির্মলম তমন্ভিনী দ্রিদ্র নীল তমস্বিনী বীন্দ্র নীল লম মুখ মোচক প্রভম ময়ূখ মে চ প্রভম বর্ষাসু চ সদা ভাতা বর্ষাসু চ সদা ভাত্যা হরিত্রণ মণি প্রভম। হরিত্রেণ মণি প্রভম। प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बहुत अच्छा। শরৎসু চন্দ্র বীরভাস্বং শরতসু চন্দ্র বিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগভৎ হেমন্তে পদ্মরাগবৎ শিশিরে হীরখাৎ শিশিরে হীরক প্রক্ষং বসন্তে পল্লবারুণম বসন্তে পল্লবারুণম গ্রীষ্মে পীয়ূষু পুরাভং গ্রীষ্মে পীয়ূষ পুরাভং যোগপীঠং বিরাজতে যোগপীঠং বিরাজতে মাধুরীভি সদাচ্ছন্নম মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নম শোকোলতি কাবৃত্তম শোকোলতি কাবৃতম অধর্ষধ্বজং মহারত্ন অধশ্চর্ধং মহারত্ন ময়ূখৈপরিতোবৃতম ময়ূখৈপরিতোবৃতম চন্দ্রাবলী দুরধর্জং চন্দ্রাবলী দুরধর্জং রাধাশোভাগ মন্দিরম রাধা সৌভাগ মন্দিরম শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গার মণ্ডপম তথা শৃঙ্গার মণ্ডপম সৌভাগ্য মণ্ডপং নাম সৌভাগ্য মণ্ডপং নাম মহামাধুর্য মণ্ডপম মহামাধুর্য মণ্ডপম সাম্রাজ্য মণ্ডপং নাম সাম্রাজ্য মণ্ডপং নাম সুরত মণ্ডপম তথা সুরত মণ্ডপম তস্তৈ যোগপীঠস্য নিত্যষ্ট যোগপীঠস্য নামানি শ্রীনু পার্বতী। নামানি শ্রীনু পার্বতী। নামাষ্টকম সেটা তো জানি কিন্তু টিউনটা কি হবে? নামাষ্টকং পঠতি প্রভাতে নামাষ্টকং পঠতি প্রভাতে শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য গোবিন্দদেবং বয়সেৎ শতেন গোবিন্দদেবং বসয়েৎ শতেন প্রেমামাপ্নোতি পরস্য পুংস। प्रेमान्माप्नोति परस्य पुंस। तो यहाँ महादेव जी का स्तुति खत्म होता है। ठीक है, पार्वती जी ने पूछा था कि हमको थोड़ा गोविंद जी के बारे में और डिटेल में बताइए। आपने आगे बताया लेकिन हिंट दिया था। ठीक है, तो इसका अनुवाद हम लोग का कहाँ तक हुआ था? पंकज प्रभु अनुवाद 50% हो गया। चालू होगा, चंपक से ही चालू होगा। मैं पूछ रहा हूँ अनुवाद का बीच तक हुआ था। नाम नहीं, उसमें अनुवाद में नाम कितना वहां से चालू होगा। टाइटल है नाम कितना। टाइटल है, अनुवाद में टाइटल है नाम आपके कितना। उसमें नहीं है, हिंदी बुक में है। नहीं नहीं, ये बंगाली में कहाँ से चालू होगा? इंद्राणी माता जी बंगाली में
প্রভুজি এই যে চম্পক লতা যেটা ছিল সেখান থেকে से আছে। चालू होगा। এটার নাম্বার বলবো লাইনটার? পড়ে দিন যেখান থেকে কন্টিনিউ হবে কন্টিনিউ করে প্রস্তুতিটা পড়ে দিন বাংলায়। আচ্ছা করে দিন। তুলসী পড়ছি আমি এইখানে একটু আগে থেকে পড়ছি। হস্তদ্বয়ে মুরলী ও রত্ন দণ্ডধারী স্কন্ধ পরি স্থাপিত নির্মল পিতবসনের বিস্তৃত অঞ্চল দ্বয়ের গুচ্ছ দ্বারা মনোহর সৌন্দর্যের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোহকারী দক্ষিণ চরণের ওপর বাম চরণ স্থানপূর্বক বিরাজমান পরিপূর্ণতম সেই গোবিন্দ দেবকে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া 4 লক্ষ বার জপ করিবে। তিল সহিত আজ্য হোমের পর চম্পক, অশোক, তুলসী, কনহার, পদ্মপুষ্পে যোগপীঠ দেবতা রাধা গোবিন্দের পূজা করিবে। ইহাতে রাধা গোবিন্দ যুগলকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারা যায়। ओके यस इसका करस्पॉन्डिंग हिंदी महामंजरी माता जी। श्री गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार है। गोविंद जी की जय हो, जो एक नवीन पुष्प के समान सुंदर हैं और जो अविनाशी लीलाओं के साधक हैं, जो शक्तिशाली बलिष्ठ पुरुष जैसे वस्त्र धारण करते हैं। ये नहीं है माता जी। कहाँ से पढ़ रहे हैं? इसी के बाद है प्रभु जी। नहीं, आपको बोलो गोविंद जी नाम की जय कितना हो। बोल के जो टाइटल है वहां से पढ़िए। नहीं माता जी थोड़ा पढ़े नहीं है। गोविंद जी की जय वो हो, आगे जो से- एक हाथ में मुरली धारण करते हैं, दूसरे में रत्न जड़ित छड़ी। आप पूरा एक पैराग्राफ आगे से पढ़ रहे हैं। अरे जहाँ से कंटिन्यू करिए अभी ठीक है, अभी ठीक है जो लाइन पढ़ रहा है अभी ठीक है। गोविंद जी की Continue, जय हो, continue. जो एक हाथ में मुरली धारण करते हैं, दूसरे में रत्न जटित छड़ी। उनका सुडौल तथा चौड़ा कंधा पवित्र और चमकदार पीले रेशम के वस्त्र से ढका है। वे संपूर्ण विश्व को मंत्र मुग्ध करते हैं। वे अपने त्रिभंग रूप में खड़े होकर अपना बायां पैर दाएं पैर पर के ऊपर रखते हैं। अपने मौन ध्यान को समाप्त कर जीव को श्री हरि का नाम 4 लाख बार लेना चाहिए। तब तिल के साथ यज्ञ कर आदि करने के बाद जीव को चंपक, अशोक, तुलसी, कलहार और कमल पुष्प के पुष्प श्री राधा गोविंद की आराधना में निवेदन करने चाहिए। ये सब करने से जीव को श्री राधा गोविंद के दर्शन प्राप्त होंगे। हरि। ठीक है चंदा माता जी समझ में आया? कहाँ है चंदा माता जी? हाँ प्रभु जी समझ में आया अभी को हिंदी। ये आज- उसमें एक लगातार पढ़े तो नहीं मेरे को समझ में आ रहा था प्रभु जी, अब आ गया। तो ये आज का होमवर्क है ठीक है ये करना है आज जो बोला इंस्ट्रक्शंस। आगे বাংলা পড়বো প্রভুজি? हाँ बांग्लाटा पढ़ून तापर हिंदी करस्पॉन्डिंग महामंजिल मादी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ से हाँ कंटिन्यू करना है या आगे बोलून। এই বৃন্দাবনেই শ্রীমন মদন গোপালও সুপ্রকট আছেন। গোপাল নিত্য কিশোর রূপধারী আর গোবিন্দদেব প্রৌঢ় বিগ্রহ অর্থাৎ পূর্ণ বিকশিত দেহে বিরাজমান। তারতম্য বিচারে এই উভয় অপেক্ষা গোপীনাথ অধিক সুন্দর। গোপাল ধীরোদ্ধত নায়ক, গোবিন্দ ধীরোদ্ধত নায়ক, ধীরোদাত নায়ক। ও আচ্ছা, আগেটা ছিল ধীরোদ্ধত নায়ক, গোবিন্দ হচ্ছে ধীরোদাত্ত নায়ক। গোপীনাথ ধীর ললিত নায়ক, গোপাল সিংহকোটি, গোবিন্দ ত্রিভঙ্গ মধুর দেহ, গোপীনাথ সুপুষ্ট বক্ষ বিশিষ্ট লম্পট। আবার এই লাইনটা পড়ুন এখন যেটা বললেন। আচ্ছা, গোবিন্দ ত্রিভঙ্গ মধুর দেহ, গোপীনাথ সুপুষ্ট বক্ষ বিশিষ্ট লম্পট। गोपीनाथ चेस्ट चौड़ा वही जन सुविशिष्ट बक्ष ना। जब हम लोग दर्शन करते नीचे से तो पहले सबसे पहले मदन मोहन का चरण दर्शन करते हैं, फिर गोविंद जी का मुखमंडल और गोपीनाथ का चेस्ट। ठीक है आगे यहाँ लंपट क्यों आया प्रभु? পুরো লাইনটা বলুন তাহলে বলতে পারবো। গোপীনাথ সুপুষ্ট বক্ষ বিশিষ্ট লম্পট, পল্লবাদী দ্বারা বিচিত্র রূপে শোভিত। लंपट स्तुति করেছেন भगवान के ऐसे स्तुति किया या आगे পল্লবাদী দ্বারা বিচিত্র রূপে শোভিত গোবর্ধনের গুহা প্রান্তে অবস্থিত এবং বাল্য অতিক্রম পূর্বক কৈশোরপ্রাপ্ত গোপীনাথের ত্রিসন্ধ্যা ভিন্ন ভিন্ন মাধুরী প্রকাশিত হয়। त्रिसंध्या अलग अलग समय अलग अलग माधुरी प्रकाश होते।
তো এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে লম্পট কেন বললো? ভগবানকে ডিসক্রাইব করতে করতে লম্পট কি ময়পয়টা একদম ওই লম্পটই বলা হয়েছে? না, আমার মনে হয় বক্ষটা বেশি চওড়া, সেটাকে কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে বাড়াবাড়ি। মানে ভাবটা ওনার হয়তো সেই সেমি সেমি হয়ে যাচ্ছে তাই। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, আগে। কৈশোরের পরের অবস্থাপ্রাপ্ত মদনাবিষ্ট শ্রী গোবিন্দ নানা রত্নে মনোহর যোগপীঠে বিরাজ করেন। এই যোগপীঠের ইহাই স্বাভাবিক প্রভাব যে গোবিন্দদেব অচিরে পরিতুষ্ট হন। অপর সিদ্ধপীঠ সকলে যে সিদ্ধি বহু বৎসরে লভ্য হয়, তাহা বৃন্দাবন যোগপীঠে একদিনেই উপস্থিত হয়। এই যোগপীঠ প্রাতকালে বালসূর্য সদৃশ্য, তারপর 3 মুহূর্ত কাল শুভকান্তি যুক্ত। हरे कृष्णा बाबू जी, ये है ना, हिंदी में भी तोड़ तोड़ के पढ़ाइए, नहीं तो ये हो जाएगा साथ साथ में एक एक पैराग्राफ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ रुकना है, हमको तो पैराग्राफ लेकर ये दे रहा जहाँ है। तक ये हुआ ना, ये पैराग्राफ तो है ही नहीं प्रभु। ये तो पूरा बंगाली में नहीं है, हिंदी में है। तो महामंत्री माता जी को रुकना बोलना पड़ेगा ना। ये आपको बोलो, उसी तब आपको पूछ रहा था कि आप पढ़िए, आपके पास दोनों है। श्री गोपाल सिंह के समान है, उसके पहले वाला पैराग्राफ तक हो जाएगा। श्री गोपाल सिंह के समान है। प्रभु इसको थोड़ा समझाना भी होगा, नहीं समझाइएगा तो समझ में नहीं आएगा गोपीनाथ में क्या है और गोविंद में क्या। एक्चुअली बुक नहीं लाया ना ये। স্টার্টিং যে মদন গোপাল থেকে গোপীনাথ পর্যন্ত যেটা হয়েছে ওই পর্যন্ত কবে, তারপরে আবার নতুন প্যারাগ্রাফ। प्रभु इसको बोलते हैं श्रीमन मदन गोपाल वृंदावन में विद्यमान है। चिरकाल से गोपाल एक बालक के रूप में और गोविंद एक किशोर के रूप में विद्यमान है। इन दोनों विग्रह की तो तुलना मदन गोपाल, एक सेकंड, मदन गोपाल बालक के रूप में मालूम है ना, वो मदन गोपाल बालक के रूप में पुरुषोत्तम चौबे जी के साथ, पुत्र के साथ खेलते थे। ठीक है, ये मालूम है ना सबको, हम लोग डिस्कस किया था। वही मदन गोपाल बाद में सनातन गोस्वामी के पास गया और बाद में उनका नाम भी चेंज हो गया। मदन गोपाल से क्या हुआ? मदन मोहन विग्रह हो गया। मदन मोहन, यहाँ। सो ठीक है, ये हो गया। आगे बोलिए। और गोविंद का रूप अलग है। मदन गोपाल बाल्य रूप में, गोविंद कोशर। ठीक है, बड़ा थोड़ा। ठीक है अशोक प्रभु, आगे। इन दोनों विग्रह की तुलना में गोपीनाथ अत्यधिक सुंदर है। गोपाल जी एक धीरोदय नायक है। इसका मीनिंग है जो ईर्षालु है, गर्वित है, सरलता से क्रोधित होने वाला है, अधीर है, असावधान है। गोविंद धीरो दत्ता नायक है। सामान्यतः बहुत बड़ा, विनीत, दयालु, कृपालु, विनियत, नर्म, सर्व गुण संपन्न, उदार और शारीरिक रूप से आकर्षक है। हरे कृष्ण। तो ये गोविंद जी है, उदार, आकर्षक। ठीक है। गोपीनाथ जी थोड़ा क्या लिखा है, घमंडी ऐसे कुछ लिखा था ना, इसीलिए तो उनको लंपट लिखा गया है। गोपीनाथ चंचल बहुत ज्यादा। और गोपीनाथ इज एडवांस्ड आल्सो, माने बॉय से आरो एडवांस्ड। पहले मदन गोपाल, फिर गोविंद जी। ऑन गोपीनाथ इज प्रयोजन विग्रह, तो और एडवांस्ड उम्र में। या आगे। शारीरिक रूप से है। और गोपीनाथ धीर ललित नायक है। सामान्यतः बहुत विनोदी, सदा तरुण रहने वाले, इस हास परिहास में निपुण और सब चिंताओं से मुक्त है। श्री गोपाल सिंह के समान गठन वाले हैं, जबकि श्री गोविंद त्रिभंग रूप में खड़े होने वाले हैं। ये तो आगे भी आया था कि गोपाल जी का सिंह कोटि याद है ना, सिंह जी जैसे कमर। और गोविंद जी का क्या लिखा है? त्रिभंग रूप से, मतलब पैर को ऊपर करके जो रखते हैं। त्रिभंग रूप, हाँ, वो लिखा था ना कल, वो दक्षिण पैर को इधर, उत्तर। हाँ, आगे। बायां पैर को दायां। नहीं, बाया डायना ने वैसे मत बोलिए। ये क्या लिखा था? दक्षिण त्रिभंग रूप में है, मतलब पैर को टेढ़ा करके खड़े होते हैं। वो तो मालूम है त्रिभंग मुरारी, लेकिन क्या लिखा वो पूछ रहा हूँ, दूसरा कुछ उत्तर दे रहे हैं। আমি বলছি প্রভুজি, দক্ষিণ পায়ের ওপর বাম পা স্থাপন করা। हाँ, तो डायना बाया नहीं, दक्षिण पैर के ऊपर एक ही बात है। लेकिन प्रभु ये तो पैर बहुत जगह बहुत तरह से दिखाया गया है। बहुत जगह बहुत तरह से दिखाया गया।
नहीं, दो ही तो पा है कैसे होता? वही है, लेकिन नहीं, कभी इसके बायां ऊपर है, पैर कभी दायां इसके पैर के ऊपर। ऊपर बोला गया है। पहले तो बायां पैर दायां पैर के ऊपर बोला गया है पहले। ओके, आगे पढ़िए। गोपीनाथ चौड़े सीने के साथ विषयासक्त होने वाले हैं। गोपीनाथ जो एक सेकंड, तो गोपीनाथ का सीना चौड़ा है, तो एक चीज बता रहा हूँ, ये जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो पहले चरण दर्शन होता है ना, फिर क्या होता है, वक्षस्थल चेस्ट चौड़ा, और मुखमंडल लास्ट में होता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। लेकिन सीक्वेंस थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। संबंध विग्रह कौन है? राधा मदन गोपाल, मदन मोहन, ठीक है, मदन गोपाल मदन मोहन बोलिए जो भी। फिर सेकंड क्या है? प्रयोजन, सॉरी अभिधेय, अभिधेय कौन है? राधा गोविंद जी। और प्रयोजन विग्रह कौन है? गोपीनाथ। लेकिन दर्शन के समय संबंध विग्रह का चरण देखना पड़ता है, प्रयोजन विग्रह का मुखमंडल और अभिधेय विग्रह का चेस्ट। 1 2 3 नहीं होता है, 1 3 2। क्या मैं समझा पाया हूं? ना तो एक बार फिर से बोलिए। संबंध अभिधेय प्रयोजन कौन है? मदन गोपाल मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ जी, ठीक है। अभी दर्शन क्या करते हैं पहले हम लोग? चरण, तो हम लोग बोलते थे ना कि मदन गोपाल मदन मोहन का चरण, गोविंद जी का नहीं, गोपीनाथ जी का चेस्ट एंड गोविंद जी का मुखमंडल। तो 1 3 2 हो गया, 1 2 3 नहीं हुआ। क्या मैं समझा पाया? जी प्रभु जी। बांग्ला दर्शन तो सीक्वेंस में नहीं हुआ प्रभु, बीच में छोड़ के ऊपर गए। नहीं है तो नहीं है। गोविंद जी का चेस्ट चौड़ा है, गोपीनाथ का चेस्ट चौड़ा है, गोविंद जी का मुखमंडल सुंदर है, ऐसे ही दिया हुआ है। नहीं है माने ऐसे ही है, तो क्या करें अभी? ठीक है, हम लोग तो ऐसे दर्शन नहीं करेंगे कि पहले चरण फिर मुखमंडल और बीच में चेस्ट, उसके बाद ऐसा तो नहीं करेंगे। नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो पहले चरण फिर चेस्ट फिर मुखमंडल, ऐसे ही तो होगा यूजुअली সিকোয়েন্স। বুঝতে পেরেছি? কৃষ্ণকটি কোমরও তো আছে সঙ্গে, চেস্টের সঙ্গে কোমরও আসছে। কোমর আসছে না, কোমর বলে না, ওটা কোটি আরতির কোটি সময় আমরা ওরকম করি। আরতির সময় চরণ, কোমর উদরই বলি, নাভি নাভি চরণ উদর। হ্যাঁ, আর মুখমন্ডল। কিন্তু যখন আমরা দর্শন করি তখন চরণ চেস্ট মুখমন্ডল, বক্ষস্থলে গোপীনাথের, মুখমন্ডল গোবিন্দের, এটাই বলতে চাইছি। কিন্তু সিকোয়েন্সটা ঠিক নেই, সিকোয়েন্সটা 1 2 3 না, 1 3 2। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं जी आगे मदन मोहन का चरण देखना चाहिए, फिर गोविंद जी का वक्ष स्थल। नहीं, वही तो बोल रहा है गोपीनाथ। आप तो 3 विग्रह एक साथ नहीं देखेंगे ना, सोचिए कोई एक विग्रह का देखा, तो पहले चरण फिर चेस्ट फिर मुखमंडल, ऐसे ही तो होगा ना नीचे से हाँ ऊपर। हाँ, मदन मोहन का चरण, गोपीनाथ का चेस्ट और गोविंद जी का मुखमंडल। हाँ, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है, 1 3 2। माने पहले देखेंगे चरण, उसके बाद मुखमंडल, तब चेस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप हाँ। तीनों विग्रह के एक साथ देखेंगे, तीनों विग्रह एक साथ हाँ, देखेंगे। हाँ। आप तो देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखेंगे, चरण चेस्ट मुखमंडल। हाँ, लेकिन कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो चरण के लिए मदन मोहन, हाँ, चेस्ट के लिए गोविंद जी, गोपीनाथ, ये तो मैं बोलना चाह रहा গোপীনাথ ओह, अच्छा। हूँ। 1 3 2। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु हम लोग 3 ठाकुर दर्शन करते तो भगवान के वो क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, 2 ठाकुर तो मत लाइए, अभी और 3 नाम ऐड होगा, अभी आधा घंटा उसमें चला जाएगा। प्रभु वो फिर चेंज क्यों हो जाता है, वो नाम क्यों चेंज हो जाता है फिर? नाम चेंज क्या है, वहाँ का वो है इष्ट देव। वो आप अगर जयपुर में जाएंगे तो ये सीक्वेंस में, और बंगाल में जाएंगे कलकत्ता धाम में तो ये सीक्वेंस में है 3 ठाकुर दर्शन। 3 ठाकुर में भी तो 3 ठाकुर है, ये मालूम है ना? हाँ 3 ठाकुर में भी 3 ठाकुर है, नहीं पता। नहीं मालूम अच्छे प्रभु। से पता है। सुमना गौरंगी माता जी, आपको तो मैं पूछा था, 3 ठाकुर जब दर्शन करने गए थे तो खड़दा में उसमें भी 3 ठाकुर है, याद है? वो कैसे? वो कैसे? खड़दा का जो हाँ गली हाँ है, प्रभु, हाँ हाँ वो याद है। वो याद। बाहर में जो वीरभद्र गंगा उनके सामने जो है। 3 ठाकुर में भी 3 ठाकुर है।
अभी वो टॉपिक में मत जाइए, पूरा डाइवर्ट हो जाएंगे। यस, कंटिन्यू। स्तुति जो कर रहे थे, कौन पढ़ रहे थे स्तुति? गोपीनाथ चौड़े सीने के साथ विषयासक्त होने वाले हैं। श्री गोपीनाथ जो कि बाल्यकाल से अभी उभर कर आए हैं और पुष्प से सुशोभित हैं, वे गोवर्धन पर्वत की सीमा पर एक गुफा में रहते हैं, जहाँ वे संध्या के 3 प्रहर में पॉज। तो और एक चीज है जो फिर से बाल्यकाल, तो गोपाल यानी मदन गोपाल यानी मदन मोहन, ठीक है? वो बेबी नहीं, माने छोटा बच्चा जो खेलता था पुरुषोत्तम चौबे जी का बच्चा कहता, ठीक है? थोड़ा बड़ा हुआ तो कौन हो गया? गोपाल तो सबसे छोटे हो गए प्रभु। सबसे छोटे। उसके बाद थोड़ा कौशल, मदन गोपाल, मदन मोहन नहीं गोविंद जी। अच्छा। और एकदम एडवांस्ड मैच्योर्ड गोपीनाथ, उसीलिए नाम से भी पता चलता है, गोपियों के साथ रास विलास करते हैं गोपीनाथ, एडवांस स्टेज। तो मदन मोहन कब हुए? लेकिन मदन प्रभु है बच्चा, ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन प्रभु इसमें लिखा हुआ है श्री गोपीनाथ जो बाल्यकाल से अभी उभर करके आए। हाँ, उभर करके आए, अभी गोपीनाथ बन गया। बाल्यकाल माने मदन गोपाल से अभी उभर करके आए, ठीक है? नाउ ही हैज एमर्ज्ड फ्रॉम मदन गोपाल यानी गोपाल टू अ बॉय डूइंग रासलीला विद गोपीज। अभी गोपीनाथ, गोपियों का नाथ है। ओके, या आगे पढ़िए माता जी। दूर है क्या? नहीं, जहाँ वे संध्या के 3 प्रहर में क्रीड़ा करते हैं। मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता था, भूल गया। कितना हो जाएगा? अभी आ जाएंगे। अच्छा, ये रख लो गोपाल, एक सेकंड गोपाल, ये रख लो। अरे मैं जगबंधु प्रभु के घर पे हूँ, जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु। मैं सोचा था आप लोग को दर्शन कराऊंगा प्रभु, लेकिन जय जगन्नाथ। कहाँ जाए बोलिए थोड़ा, कहाँ है आप? नहीं वो मत खोलिए, यहाँ आसपास कहाँ है? अच्छा, छोड़ने के लिए चले गए। आएंगे ना, अभी आ जाएंगे ना। अच्छा, थोड़ा साइड आओ, उस साइड चलेगा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, चार्जिंग पॉइंट थोड़ा दूर में, एक सेकंड। लैपटॉप स्टैंड, ये तो स्टैंड हो गया, तो ये थोड़ा उठ के रहेगा आपका। नहीं चलेगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो मैं उनका ऑल्टर दिखाता हूँ, कितना सुंदर ऑल्टर देखिए। प्रभु आप अकेले क्यों चले गए? हम लोग को लेके जाना था ना। अरे कृष्ण, ये देखिए उनका ऑल्टर, देखिए कितना सुंदर ऑल्टर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, हरि बोल। जय जगन्नाथ। राम की भगवत में। अब देख प्रभु अपना बर्थडे में वहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु चले गए अकेले हम लोग को छोड़ के। कल लिंगराज जी का दर्शन करने के बाद फिर सोचा टाइम में भी क्या करे, तो फिर तुरंत वो उधर एक टैक्सी स्टैंड है, 100 रुपया लिया, एसी टैक्सी में बिठाकर पूरी ले आया, 100 रुपया में ओनली। सोचिए, ये जिग्नेश प्रभु, सॉरी ये जिग्नेश प्रभु है, जिग्नेश स्वरूप प्रभु, ये जगबंधु प्रभु का पुत्र है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सादर प्रणाम। तो कल रात 11 बजे जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। हरि 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 बोल, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। बड़ा सिंगर बाबू, बड़ा सिंगर, हरि बोल। बड़ा सिंगार दर्शन, यस, बड़ा सिंगार दर्शन हुआ, या बहुत सुंदर बड़ा सिंगार दर्शन। और फिर प्रभु आप सारा पता करके आइए, फिर हम लोग को लेके चलिएगा। पता क्या करना, ये तो आप लोग को ही मालूम है। कल अनंत वासुदेव मंदिर गया, बहुत सुंदर, वो धाम रक्षक है भुवनेश्वर का, बहुत सुंदर विग्रह है। बाएं तरफ अनंत शेष और दाहिने तरफ, एकदम दाहिने तरफ वासुदेव, और बीच में है सुभद्रा महारानी। तो मैंने पूछा पुजारी से ऐसे, तो बोला अनंत शेष यानी बलराम जी, इसलिए अनंत, वासुदेव यानी कृष्ण, और बीच में सुभद्रा, तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। वंडरफुल। जैसे ये जगन्नाथपुरी का धाम रक्षक कौन है, किसको मालूम है? हनुमान जी। धाम रक्षक नहीं,
नहीं नहीं लोकनाथ महादेव लोकनाथ लोकनाथ लोकेश्वर महादेव ना लोकनाथ लोकनाथ लोकेश्वर महादेव लोकेश्वर गोपेश्वर महादेव महादेव तो पुरी का लोकनाथ पुरी का मुझे क्षेत्रपाल भगवान कौन है? पुरी का भगवान है जगन्नाथ, क्षेत्रपाल कौन है? लोकनाथ। लेकिन भुवनेश्वर का उल्टा, भुवनेश्वर का भगवान है शिव जी, लिंगराज। लिंगराज लिंगराज और क्षेत्रपाल कौन है? क्षेत्रपाल है अनंत अनंत वासुदेव। वासुदेव। उल्टा है, क्षेत्रपाल अभी हो गया विष्णु, अनंत वासुदेव। और भगवान कौन है भुवनेश्वर का? लिंगराज। Made for each other हो गया। वहाँ लिंगराज नाम से फेमस है उस जगह पर। हाँ, प्रभु- जिग्नेश स्वरूप प्रभु बोल रहा है भुवनेश्वर में लिंगराज का रथ यात्रा होता है शिव जी का। हरी हरी बोल। उनका रथ यात्रा का नाम रुक्मिणी रथ यात्रा। रुक्मिणी रख होता है। हरी बोल। हाँ। यस ये तो मार्च महीना होगा। प्रभु इसके लिए तो आपको बोले आप सारा पता करके आइए फिर हम लोग को लेके चलिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जो सूर्य जो मंदिर है कोणार्क मंदिर वो पूरा विकसित नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत ऊपर छोड़ दिया गया था उसको। उसके पीछे भी बस वाला पूरा वहाँ का हिस्ट्री बताते बताते ले जा रहे थे अरे हम माता लोग जी को। लिंगराज का बात चल रहा है, आप कोणार्क हाँ। कहाँ भाग रहे हैं? हरे कृष्ण। तो प्रभु वही जी बोल रहे भुवनेश्वर हैं। में ही तो है, वो भी तो भुवनेश्वर में ही है ना। ओके, ये प्रभु बोलिए। मैं बोल रही थी, हाँ बोल रहे हैं कि जैसे लिंगराज का जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे होता है द्वारपाल, तो क्या भक्तों के सत्ता की वजह से ऐसा हुआ है कि उन लोग की स्टोरी पता नहीं है क्यों ऐसा है? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा ही है। शिव जी तो परम वैष्णव है, उनका रथ यात्रा निकलता है। ओके। हाँ, और भगवान क्षेत्रपाल बन जाता है। भगवान ये क्षेत्रपाल भगवान के बन भी जाता है अलग भुवनेश्वर। रूप हैं। जैसे ध्रुव महाराज का जो धाम है ध्रुव लोक का क्षेत्रपाल कौन है? गेट पे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? सब नारायण नारायण खड़ा है। नारायण खड़ा है। चतुर्भुज नारायण गेट कीपर बन के खड़ा है। रूप लोग का कि बलि 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 महाराज, सॉरी, बलि महाराज बलि महाराज। बलि महाराज का जो राज्य दिया उसमें खड़ा है। तो वैसे ही यहाँ शिव जी है और क्षेत्रपाल है अनंत वासुदेव। ये कोई इग्नोरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं उसी लिए गलती किया, नहीं ऐसा नहीं। कहीं कहीं आया है प्रभु की दान प्रदान है भगवान प्रभु, के है रूप में। ना? हाँ, अच्छा, बहुत डाइवर्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसमें भी कोई कथा होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। प्रभु आप ऐसे ही घूमते रहिए, हम लोग को धाम का मनो दर्शन कराते हैं। हरि बोल। यस, आगे। दर्शन नहीं कराना, हम लोग को भी जाना है। प्रभु ना प्लान बनाते कोई जाता है कोई नहीं जाता। हम लोग को लेके जाते ना। अरे माता जी टूर जा रहा है ना जून महीना में। नहीं, प्रभु के संग में जाना है। प्रभु इतना सबको बोलते कोई तैयार नहीं होता, इसलिए प्रभु जी ने आइडिया चॉइस किया जाएंगे। ये अच्छा, एकदम ये अच्छा बोला आपने, ये अच्छा बोला आपने। यस, ये बूढ़ा बूढ़ी लोगों को सबको लेकर जाना, बाप रे बाप। हाँ, इससे अच्छा खुद और एकदम सही बोले, हम लोग बूढ़े हो गए। हाँ प्रभु हम लोग बुढ़ा हो गया। भरेंगे ये सब लेकिन चालू है। 1000 बार बोलो, अच्छा से वीडियो बनाकर 1000 बार दिखाओ, फिर पैसा मांगो, फिर अरे बाप रे बाप। इससे प्रभु अच्छा हम भुवनेश्वर का टेम्पल का सब फोटो रखे हैं प्रभु, दिखा देंगे मोबाइल में। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, माता जी का फोटो दिखा देंगे, फोटो दिख लीजिए। आगे आगे। ओके, ठीक है, आगे देख लीजिए प्रभु। इसके बाद गोविंद जी जो कि परिपक्व हैं और मदन द्वारा अलसाए हुए हैं, इस भव्य रीति से सज्जित इस योग पीठ का आनंद लेते हैं। पर कई वर्षों बाद विभिन्न पीठों पर प्राप्त किए गए पूर्ण वृंदावन में योग पीठ में एक दिवस में प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ये कथा फल माने ये है दर्शन फल। योग पीठ में जाने से, दर्शन करने से कितना फल हो सकता है ना कंपेयर टू अदर्स तीर्थ। आगे। योग पीठ में प्रातः काल उदय होते सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, जबकि अगले 3 मुहूर्त में वे अत्यधिक सफेद चमकदार हो जाते हैं। वो माने आगे। दोपहर में यह चौंधियाने वाले दोपहर के सूर्य के समान दिखते हैं। दोपहर के बाद ये कमल के पत्तों के समान लगते हैं और सायंकाल में सिंदूर के ढेर की लालिमा के समान लगते हैं। पूर्णिमा की रात
योग पीठ पूनम के शांत चंद्रमा के समान लगता है और अंधेरी अमावस्या की रात में घने नीलम के समान चमकदार कालिमा लिए लगता है। वर्षा के दिवस में यह हरी घास पर उगते हुए आभूषण के समान लगता है। पतझड़ के दौरान माणिक के समान लगता है और शीतकाल में यह हीरे के तरह चमकता है। बसंत में यह नवीन पत्ते के समान लगता है और ग्रीष्म काल में ये अमृत के बहाव के समान लगता है। योग पीठ असीमित मधुरता से भरा हुआ है। यह चारों ओर से अशोक और अन्य वृक्षों से घिरा हुआ है। विविध प्रकार के आभूषण से सुसज्जित है। हरे जय जय। यहाँ खत्म होता है शिव जी का स्तुति। प्रभु जी बांग्लाটা हाँ, एक सेकंड तुम भी सुनो, तुमको भी काउट खेलना है। काउट होगा, तुम भी ज्वाइन करना। यस, बांग्ला। অপর সিদ্ধপীঠ সকলে যে সিদ্ধি বহু বৎসরে লভ্য হয় তাহা বৃন্দাবন যোগপীঠে একদিনেই উপস্থিত হয়। এই যোগপীঠ প্রাতঃকালে বালসূর্য সদৃশ্য, তারপর 3 মুহূর্ত কাল শুভ কান্তিযুক্ত, মধ্যাহ্নে তরুণ সূর্যের প্রভাব বিশিষ্ট, অপরাহ্নে ये सबको समझ में आया ना कि सूर्यदेव योगपीठ में कैसा दिखता है अलग अलग समय में। ये सबको समझ में आया ना? ओके, आगे। 3 মুহূর্তকাল শুভ কান্তিযুক্ত, মধ্যাহ্নে তরুণ সূর্যের প্রভাব বিশিষ্ট, অপরাহ্নে পদ্মপত্রের ন্যায়, সায়ংকালে সিন্দুর রাশির আভা বিশিষ্ট, জ্যোৎস্না রাত্রিতে শশীর ন্যায়। সায়নকাল মানে সূর্যের অস্ত। সায়নকাল মানে রাত্রে না, সায়নকাল সন্ধ্যাবেলা যখন অস্ত হচ্ছে তখন সিন্দুর, মানে একদম সিন্দুর जैसे লাল টকটকে লাল হয়ে যায় না যখন সিন্দুরটা অস্ত যায়। यस, आगे। मध्य में क्या बोले? जैसे अलग जगह में मध्य में जैसे होता है एकदम तेज, वैसे ही। ठीक है, मध्य में প্রভুজি বলেছে তরুণ সূর্যের প্রভা বিশিষ্ট। তরুণ সূর্য মানে একদম নতুন সূর্যের যে হিটটা বেশি হয় তখন मध्य का बोले। হ্যাঁ। অপরাহ্নে পদ্মপত্রের ন্যায়, সায়ংকালে সিন্দুর রাশির আভা বিশিষ্ট, জ্যোৎস্না রাত্রিতে শশীর ন্যায় নির্মল, অন্ধকার রজনীতে ইন্দ্র নীল মণি কিরণের শ্যামকান্তি তুল্য, বর্ষাকালে দীপ্তিতে হরিত বর্ণ। হরিত মানে সবুজ তো? হলুদ না? হলুদ মানে কি? হলুদ তো येलो हरा। अच्छा, हरा सबुज बोलता है ना हिंदी में ना? हरा हरा बोलता है। सबूज को हरा बोलते हैं, हरा। अच्छा, हरित वर्ण हरित হলুদ 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 হরিত বর্ণ येलो के बोले पीला। पीला। हाँ हाँ, पीला बोलते हैं, सबूज को हरा बोलते हैं। संस्कृत है प्रभु, तो ये तो हरिद्रा। हाँ, माने हलुद। हाँ, आगे। বর্ষাকালে দীপ্তিতে হরিত বর্ণ তৃণ, মণির প্রভা বিশিষ্ট মণির প্রভা বিশিষ্ট, শরৎকালে চন্দ্র বিম্ব তুল্য, হেমন্তে পদ্ম রাগ মণির ন্যায়, শীতকালে হীরক সদৃশ্য, বসন্তে পল্লবের ন্যায় অরুণ, গ্রীষ্মে অমৃত রাশির কান্তি বিশিষ্ট, সর্বকালেই নানা মাধুরী পরিপূর্ণ, অশোক লতিকা এটা বুঝলাম না। গ্রীষ্মে অমৃত রাশি মানে গ্রীষ্মকালে তো প্রচন্ড তেজ সূর্যের, প্রচন্ড মানে সামার সিজন में অমৃত রাশি। অমৃত রাশির কান্তি বিশিষ্ট। কান্তি রাশিটা কি? অমৃত রাশি किसी को मालूम है अमृत राशि क्या होता है? অনেক অমৃত রাশি বলতে অনেক चंद्रमा की रोशनी में इतना चमकता है, वो अमृत के कैसे होता है? जिसमें आगे आगे। प्रखर चांदनी। সর্বকালেই নানা মাধুরী পরিপূর্ণ, অশোক লতিকা বেষ্টিত, অধ ও ঊর্ধ্বে উত্তম রত্ন সকলের কিরণ দ্বারা সর্বতভাবে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত। আগে আরো আছে তো? এই অবধি আছে। এরপরে আছে হে পার্বতী এই যোগপীঠের অষ্ট নাম শ্রবণ করো।
हाँ बोले थे उन्होंने तो पूरा पढ़ दिए आपने पूरा पढ़ लिया ना अनुवाद महामंजिरी माता जी এইটা পড়েনি। इसके बाद इसके बाद है। इसके बाद बाकी है अच्छा प्रथमे বাংলাটা পড়ুন তারপরে হিন্দিটা পড়বেন ঠিক আছে। হে পার্বতী এই যোগপীঠের অষ্ট নাম শ্রবণ করো। চন্দ্রাবলী দুরাধর্ষ, রাধা সৌভাগ্য মন্দির, শ্রী রত্ন মণ্ডপ। एक सेकंड ये एक नाम बोलेगा बंगाली में और उसका हिंदी नाम महामंजिरी माता जी बोलिएगा ठीक है तो समझ में सुविधा होगा तो ये जोगपीठ यानी जहाँ राधा गोविंद जी बैठा हुआ है उसका 8 नाम है ठीक है पहला वाला बोलिए बांग्ला चंद्रावली दुराधर्ष चंद्रावली दूराधर्ष इसमें भी चंद्रावली दूराधर्ष नहीं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसका दिया हुआ है देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में इसका अर्थ क्या है नहीं प्रभु अलग से नहीं है नहीं नहीं अरे वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए কি বলছি বুঝতে পারছেন ইন্দ্রাণী মাতাজি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ খুঁজতে কারণ শ্লোক তো অনেক পিছনে পড়ে এসেছি চন্দ্রাবলী ধুলা ধৈর্য না 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 চন্দ্রাবলী দুরাধর্ষ দুরাধর্ষ মানে কি দিলীপ প্রভু ঘুম পেয়ে গেছে हाँ प्रभु चंद्रावली এই সচিশুনাথ শ্রীবাস একটু খুঁজে বের করুন তো এটা ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড मीनिंग है आगे एगन राधा सौभाग्य मंदिर ये तो सबको समझ में आएगा दूसरा वाला क्या नाम है उसका नाम लिखा है इत्तेकम। সবাই বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ অশোক প্রভু কি বলছেন चंद्रावली दुराधर्ष का पोस्ट ब्रैकेट में लिखा है इत्तेकम। फिर से बोलिए चंद्रावली दुराधर्ष हाँ उसका मीनिंग क्या दिया हुआ है इत्तेकम इत्तेकम। उसका क्या अर्थ हुआ कुछ मालूम नहीं हो रहा अर्थ का अर्थ देखना पड़ेगा ओके आगे बोलिए श्री रत्न मंडप राधा सौभाग्य मंदिर श्री रत्न मंडप ये तो सबको समझ में आ रहा है तो आगे कुछ बोलना नहीं है श्री रत्न मंडप सीक्वेंस से इसके नाम है द्वितीय तृतीय ऐसा बोला गया है। हाँ प्रभु नेक्स्ट राधा योगपीठ मंडप का 8 नाम है योगपीठ का 8 नाम हाँ 8 वही तो একই ওই হিন্দি বাংলা সব একই হবে নাম सीक्वेंस श्रृंगार मंडप ना नामটা অর্থটা বুঝতে পারছি কিনা ওটাই বলছি माय गुडनेस इतना कुछ बोलने से फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे बोलिए শ্রী রত্ন মণ্ডপ শৃঙ্গার মণ্ডপ সৌভাগ্য মণ্ডপ মহামাধুর্য মণ্ডপ সাম্রাজ্য মণ্ডপ ও সুরত মণ্ডপ সুরত মণ্ডপ সুরত মানে কি সুরত তো রূপটাই বোঝায় चेहरा হ্যাঁ चेहरा सूरत हाँ हिंदी में तो सूरत बोलते हैं ना आपका बहुत अच्छा सूरत है वही होगा फिर चेहरा मंडप हो सकता है যে জন প্রভাতে সর্বোত্তম শ্রী যোগপীঠের नामाष्टक पाठ करें जो सुबह में যোগপীঠ का नामाष्टक पाठ करते हैं आप लोग किया ना अभी क्या होता है देखिए তিনি তাহাদারে গোবিন্দদেবকে বশ করিতে সমর্থ হন হরি বল आप गोविंद जी को वश कर सकते हैं এবং परम पुरुष श्री कृष्णের प्रेम लाभ करें हरि हरि बोल अभी सब पढ़ रहे हैं 8 नाम तुरंत देखिए अभी जब सुना अभी सब पढ़ने लग गया ओके आगे बोलो लास्ट लाइन प्रभु जी 8 को तो नहीं हुआ 8 को नहीं हुआ 1 2 3 4 5 हो गया 6 7 8 8 ही तो है इति ऊर्ध्वबान्मयन तंत्रे तंत्र ये कोई बुक है उसमें दिया है जोगपीठ प्रकाश नामक ऊनविंशति पटल 99 पटल माने स्तुति क्या देखिए 1959 से 95 कितना होता है श्लोक काउंट कीजिए ऊनविंशति माने कत 29 ना कोई बोल ही नहीं रहा है ऊनविंशति 36 হলো টোটাল বাবুজি 36 1959 माइनस 95 36 তাহলে ঊনবিংশতি কেন লিখছে ঊনবিংশতি 19 কে তো ঊনবিংশতি বলে ঊনবিংশতি कितना है 19 ঊনবিংশতি प्रकाश नामक ঊনবিংশতি पटल 19 होना चाहिए ঊনবিংশতি तो इधर कितना हो रहा है काउंट करके 36 हो रहा है 36 आई डोंट नो व्हाई एनीवेज अगला श्लोक एतो कोहि श्री पंडितो अंतरे प्रभु आगे बहुत बड़ा है फिर इसके बाद प्रभु आज क्लास भी है 56 হয়ে গেছে বাবুজি
तो थोड़ा फटाफट थोड़ा पढ़ लेते हैं। এত কহি শ্রী পণ্ডিত উল্লাস অন্তরে, এত কহি শ্রী পণ্ডিত উল্লাস অন্তরে, ভোজন টিলা হইতে চলে ধীরে ধীরে। ভোজন টিলা হইতে চলে ধীরে ধীরে। तो ये सब बातचीत तब हो रहा था जब इन लोग भोजन टीला पहुंचा था। मैंने फिर वीडियो भी दिखाया था, याद है, जहां भगवान ने भोजन किया है, वो गोल गोल प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। কত দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা, পথ দূরে কিয়া কহে সুমধুর কথা, করিলেন তপস্যা সৌভরি মনি এথা। করিলেন তপস্যা সৌভরি মুনি এথা। ओके, थोड़ा दूर जाकर सौभरी मुनि जहां तपस्या किया था। देखो हो যমুনা তীরে স্থান সুনির্জন, দেখো হো যমুনা তীরে স্থান সুনির্জন, সনরখ নাম গ্রাম জানে সর্বজন। সনরখ নাম গ্রাম জানে সর্বজন। ओके, समझ में आ रहा चंदा माता जी? যমুনা तीर में एक बहुत सुंदर जगह और वहाँ एक गांव है सनोरख। अरे এই যে কলিও হৃদয় দেখো শ্রীনিবাস, কালীয় হৃদয় দেখো শ্রীনিবাস, এই যে কালীয় রথ দেখো শ্রীনিবাস, এটা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য বিলাস। यथा श्री कृष्णेर अति आश्चर्य विलास। कालिया रथ रथ माने कालिया इधर तालाब तालाब तालाब। ओके, ये कालिया रथ तो हम लोग देखा है, ये जब हम लोग परिक्रमा मार्ग में ही आता है, कालिया दमन जहाँ किया था भगवान ने। कालिंदिर तीरे केली कदम्बे चोरिया, कालिंदिर तीरे केली कदम्बे चोरिया, कालिंदिर जले पड़िलेन झाप दिया। कालिंदिर जले पड़िलेन झाप दिया। तो भगवान ने यमुना के तट पर एक वृक्ष था कदम का, वहां चढ़ गया और फिर वहां से जंप किया यमुना में। किनको क्यों जंप किया? कालिया को दमन करने के लिए। कालिया नाग के ऊपर या कालिया दमन करे कालिंदिर जले। कालिया कालिया सर्पेरे कृष्ण अनुग्रह कइला। আগের লাইন থেকে পড়ুন। कालिया सर्प कालिया दम, ठीक ही तो बोल रहा हूँ না, আপনি ওই নাম্বারের লাইনটা পড়লেন, তার আগের থেকে হবে তো। কালিয়া সর্পেরও কৃষ্ণ অনুগ্রহ কইলা, কালিয়া দমন করে কালিন্দির জলে। কালিও দমন করে কালিন্দির জলে, কালি সর্প সর্প ফনে নাচে দেখো এ সকলে। কালি সর্প ফনে নাচে দেখো এ সকলে। तो भगवान जब जंप किया, आपके सामने घड़ी नहीं है क्या? कालिया नहीं है, कालिया क्या किया? फुसफुस किया। ओके, थोड़ा तो कालिया सर्प फने नाचे देखो ये সকলে, सबको देखकर इन ऑर्डर टू हर्ट देम, मारने के लिए से फसफस कर। कालिया सर्पेरे कृष्ण अनुग्रह कइला, কালিও সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কইলা, एता হইতে রমন দ্বীপে পাঠাইলা। এথা হইতে प्रभु जी 7 बज गया है। और बस कुछ ये वाला थोड़ा ओके। सो तो कालिया आपको सर्पेरे कंप्लीट कृष्ण क्यों करना है? हम लोग को अनुग्रह कइला। समझना है ना इसको, आपको कंप्लीट क्यों करना है? एक टारगेट लेके चलते हैं थोड़ा। तो प्रभु आपका कालिया टारगेट रहने दीजिए, इसमें टाइम दिमाग चल में जा नहीं रहा है, दिमाग में जा नहीं रहा, आप इतना टाइम हो गया एकदम। कालिया का ये दिमाग भी नहीं जा रहा है। ओके, कालिया এই কালিয়া হ্রদে স্নানা কোথায়? কালিয়া সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কইলা, অনুগ্রহ कृपा কইলা, और कृपा किया, मारा नहीं, वध नहीं किया। हम लोग को मालूम है डिटेल में कि उनका पत्नी लोग सब स्तुति किया, और फिर क्या किया? एथा होइते रमनक द्वीपे पाठाइला। तो कालिया का बोला कि आप ये वृंदावन में कभी मत आना, इन लोग को परेशान मत करना, आप एक काम करो, आप रमनक द्वीप में चले जाओ। এই কালিও হ্রদে স্নানাদিক করে যে, এই কালিয়া হ্রদে স্নানাদিক করে যে, অনায়াসে সর্ব পাপে মুক্ত হয় সে। অনায়াসে সর্ব পাপে মুক্ত হয় সে। समझ में आ गया ना? विष्णु लोके जाए था देह त्याग হইলে, বিষ্ণু লোকে যায় এথা দেহ ত্যাগ হইলে, পুরাণে কহে আর নানা ফল মিলে। পুরাণে কহে আর নানা ফল মিলে। ठीक है,
विष्णु लोक गमन होता है और अलग अलग फल मिलता है। एखाने रोहिलो ग्रंथो अमृत लहरी एखाने रहिलो विठ्ठल हरी सबे बोलो हरि हरि। बदन भोरी तबे बोलो हरि 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 बोल हरि बोल। आलित मंदिला की जय। जय श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। जय ठाकुर जगत गुरु श्री की प्रभुपाद जय। की जय। समस्त की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल।